Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture, I will describe you drugs and alcoholic abuse part 2, the matter of class 12, chapter 8, human health and diseases. Actually, if you forget the drugs and alcoholic abuse and their factors over the body that can influence vigorously by many way, then there is no relevant to study the human health. Actually, human health is directly proportional to those factors that can influence our body parts, and negative and bad habits of drugs that can influence in our body parts is one of them. In previous video lecture, I have described you drugs may be high intensity or low intensity. Drugs that are low intensity may be theine, caffeine, and nicotine that generally often used directly or indirectly by our community, by our family member, by you, by me. There has very lack effect over body parts, but we cannot ignore them. In order to make the drug in second category, that is high intensity, they are actually effect to the body parts, and their misuses and overuses that become addict are known as alcoholic abuse. Alcoholic abuse are the process or the concepts by which a persons are regularly involved in bad habits of drugs and their addiction. So government try to resolve that problems through the putting the kinds of very emotional subject, emotional topics in the syllabus in order to resolve the problems from adolescence and from our community level. But many of other students, many of other adolescents that are not involved with the curricular activities, that are not involved with the school level activities, or remain far away from that kinds of factors, that kinds of concepts. So this is my humble request to you that never try to do that kinds of particular negative uses, the bad habitats by which your family members, you personally often get affected by that kinds of drugs and their alcoholic abuses. Actually, in previous video lecture, I have described you the categories of drugs, concepts of drugs, and also the high intensity of drugs among them. The opioid category of drugs are over. In opioid category of drugs, they obtained basically from opium plants, that is also known as poppy plants, the scientific name Papaver somniferum. Government actually adopt the farming of opium through the different kinds of medical purpose, because they are strong painkillers and sedatives used in different kinds of surgery, different kinds of surgical medicines. They are also used in making the cough syrup and the medications of respiratory dilations. So there are so many positive effects, there are so many positive roles of opioid drugs in our society, but many of other adolescents, many of other social levels are involved to divert the adolescents in order to adopt them as opioid as the bad habitats. So this is uh, totally illegal in India, uh, using the drugs, using those kinds of drugs that are easily available in medical stores through the various medical purpose, but often the adolescents as well as the young age as well as the other age group persons are actually directly or indirectly involved to that kinds of bad habitats. So the using of negative effects, using of the different ways of drugs are actually totally prohibited in India. In this video lecture, I will describe you the second categories of high intensity of drugs, that is cannabinoids and the coca alkaloids as well as the alcohols. I hope your concept regarding the opioids, they are actually often uh, available as a products of codeine, morphine,
or acetylmorphine, diacetylmorphine, but they are mostly they are mostly uses by our adolescents, by our young age group as the drug, as the alcoholic abuse. So the basic relevant to putting the drugs and alcoholic abuses topic in our syllabus is to overcome that kinds of problems. In the previous video lecture, I have described you the opioid drugs are directly affect to our central nervous system. In this video lecture, I will describe you the concepts of cannabinoids drugs, coca alkaloid drugs, as well as the alcohols. So without delay timing, let back over the board in order to understand the cannabinoids, coca alkaloids, as well as the alcohol. Cannabinoids. Listen. Cannabinoids are sensitive to cannabinoid receptors in brain, so called cannabinoids. Not all drugs are cannabinoids, because not all drugs are sensitive to the cannabinoid receptors in our brain. In our brain, so many receptors are found: opioid receptors, cannabinoid receptors. So in previous video lecture you have learned the opioid drugs are linked with our body to the receptor, specific receptors, and that receptors are actually the opioid receptors. And cannabinoid types of drugs, these kinds of drugs are linked with our cannabinoid receptors in brain, so the cannabinoid receptors are called. The main source of cannabinoids are cannabis sativa. So the cannabis sativa, as per name of cannabis sativa, the cannabinoids are also called cannabinoids. Keep in mind, cannabis sativa are actually locally available plants that generate many products. That is, many products are obtained from the cannabis sativa in different naming. The products, plant products are marijuana, ganja, bhang, hashish, charas. These are mostly used for the different kinds of drug and their addictions by the drug addict. So these are not these are not actually good for health. So these are different way or many ways effect to the body parts. Now how obtained? This is the how obtained for means how these product obtained from the cannabis sativa. It is from the inflorescence of cannabis sativa plant. CS means cannabis sativa plants, means cannabis sativa has a bunch of inflorescence at their tip or at their lateral branches. So by using the inflorescence become dried and later become in form of powdery form, or often the inflorescence are directly used by the drug addict, so that their inflorescence are essential to know. Inflorescence are having capacity to different ways affect to our body parts. ये इन्फ्लोरेसेंस जो है हमारी बॉडी पार्ट्स को डिफरेंटली जो है इफेक्ट करता है और एक्साइटेशन और बाकी पर्पज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, तो ये हमारे ये कैनबिस सटाइवा का कौन सा पार्ट यूज होता है एग्जाम में पूछता है. कैनबिस सटाइवा का इन्फ्लोरेसेंस ऑफन यूज होता है किस पार्ट में? ये हमारे बॉडी में कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है. और मेन इफेक्ट क्या है इसका, ये एग्जाम में आता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ये इफेक्ट करता है. ठीक है, ये मेन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करता है. इससे पहले ओपियोइड ड्रग्स क्या करता था, वो जीआई ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता था, जीआई ट्रैक्ट को इफेक्ट करता था. ठीक है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा इफेक्ट करता था. तो वहाँ से आपको ये नॉलेज मिला था कि पर्टिकुलर ड्रग्स किस पार्ट को, किस बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करते हैं. तो वहाँ से आपको जानना था. ओपियोइड ड्रग्स सीएनएस को इफेक्ट करता है, सीएनएस और जीआई ट्रैक्ट, और कैनाबिनॉइड ड्रग्स जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करता है. मोड ऑफ इंटेक, ये जितने भी कैनाबिनॉइड ड्रग्स हैं, चाहे मरीजुआना, गांजा, भांग, हशीश, चरस, इसको दो तरीके से लिया जाता है. फर्स्ट क्या है, इनहेलेशन, यानी कि खाया जाता है डायरेक्ट, इनहेलेशन यानी स्मोकिंग के थ्रू. और दूसरा क्या है, ओरल इंजेक्शन, यानी कि इसको खा लिया जाता है. ठीक है, आई होप आपका कॉन्सेप्ट कैनाबिनॉइड ड्रग्स से रिलेटेड क्लियर हो गया होगा. कैनाबिनॉइड ड्रग्स का जो स्ट्रक्चर है वो भी हमारे सिलेबस में है, तो इसको इरेज कर दे ताकि आपको कैनाबिनॉइड ड्रग्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया जा सके. कैनाबिनॉइड ड्रग्स का स्ट्रक्चर लीनियर होता है. यहाँ से हम जान लेंगे इसके स्ट्रक्चर की खास बात क्या होती है. ठीक है, थोड़ी सी नंबरिंग करना इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इसकी नंबरिंग आपको जान लेना. ये सब कार्बन बॉन्ड है, जहाँ जहाँ ये है कार्बन का सिंगल बॉन्ड है. ठीक, इसकी नंबरिंग आप जान लेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी. ठीक है, अब इसकी नंबरिंग करते हैं और उसी हिसाब से इसको बनाते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा एक रिंग यहाँ पे बनाएंगे. याद रखो कि 9 नंबर पे एक रिंग बनेगा, और यहाँ पे OH ग्रुप जोड़ देंगे. उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ से फिर
12 13 हो जाएगा, 13 14 15 16 और 17, ठीक है 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ये जितने पॉइंट आउट किए गए वो सब कार्बन के नंबर है, ठीक है। तो कार्बन का आपको नंबर याद रखना है, ठीक है। कार्बन का नंबर अगर याद रहेगा तो आप इसको कर ले जाएंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं इसके लिए, ठीक। और इसका थोड़ा सा इसमें हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी दिखा दीजिए ताकि ये स्टेबल पता चले, ये स्टेबल है। तो ये यहाँ पे भी OH ग्रुप जोड़ना है 10 नंबर पे। तो ये है स्ट्रक्चर किसका, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल कैनाबिनॉइड्स। आप नोट कर लीजिए ये किसका स्ट्रक्चर है, नॉर्मल कैनाबिनॉइड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में चर्चा करते हैं कोका एल्कलॉइड्स की। द थर्ड टाइप ऑफ हाई इंटेंसिटी ड्रग्स इज कोका एल्कलॉइड्स, COCA, कोका एल्कलॉइड्स। कोका एल्कलॉइड्स में कौन कौन सी कैटेगरी, कौन कौन से जनरल टर्म्स है इसमें यूज किया जाता है, इसी के लिए कोकैन, कोक, और ये क्रैक, CRAKE, क्रैक। कोकैन पॉपुलरली नोन है इससे, ये इंटरनेशनल मार्केट का सबसे रेस्ट्रिक्टेड, अगर बोला जाए सबसे रेस्ट्रिक्टेड ये ड्रग्स है, और ये काफ़ी कास्टली मिलता है क्योंकि इसके बनाने के प्रोसेस काफ़ी टफ है। और बनाता किससे है, ये बनाया जाता है इरिथ्रोजाइलम कोका का, जो नेटिव प्लांट है साउथ अमेरिका का, अपने यहाँ का प्लांट नहीं है, ये साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट है इरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। और इसके बनाने का प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और काफ़ी ड्यूरेबल है, ठीक है, काफ़ी लॉन्ग टर्म इसका यूज होता है। इस वजह से ये जो है काफ़ी इंटरनेशनल मार्केट में हाई लेवल में मिलता है। और ये रेस्ट्रिक्शन भी है इसका, रेस्ट्रिक्टेड है, पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है इंटरनेशनल मार्केट में और साथ साथ इंडिया के जहाँ भी इसमें इसका यूज किया जाता है। मोड ऑफ इनटेक बेसिकली इसको स्नॉटिंग के थ्रू ड्रग एडिक्ट लेते हैं। स्नॉटिंग का मतलब पेपर पे इसको फैला देते हैं और एक साइड से जलाते हैं, दूसरे साइड से उसको किसी रोल पाइप से इसको खींचते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं स्नॉटिंग। इफेक्ट कहाँ ये इफेक्ट करता है, बॉडी के किस पार्ट को इफेक्ट करता है, इट रिस्पॉन्सिबल टू इफेक्ट द सेंटर नर्वस सिस्टम। ये हमारी बॉडी के सेंटर नर्वस सिस्टम को कुछ समय तक जो है शांत कर देता है। तो हमारी बॉडी जो है हमारे बस में, यानी कि एकदम से वॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म नहीं होता है और बिल्कुल जो है सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाली बातें रहती है वहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बॉडी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाले ड्रग्स होते हैं। साथ साथ ये बॉडी का जो डोपामाइन लेवल है 300% बढ़ा देता है। एक्चुअल में हम कोई भी ड्रग एडिक्ट लेते हैं जो हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हमारे बॉडी में एक तरह का केमिकल सिक्रेट करते हैं जिसको कहते हैं डोपामाइन। ये डोपामाइन हमारे बॉडी में अगर सिक्रेट हो रहा है तो हमारी बॉडी का जो नेचुरल एक्टिविटी है वो उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से सबसे पहले अगर जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स की जो बॉडी चेकअप होता है उसमें उसके यूरिन के थ्रू या ब्लड के थ्रू ये इसका लेवल चेक किया जाता है कि डोपामाइन का लेवल कितना % है, ठीक है। नॉर्मल लेवल आपका जो है 100% के आसपास होना चाहिए, बट ये अगर 100% से ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है, नॉर्मल लेवल चेक हो जाता है। अगर ये नॉर्मल लेवल से अगर कुछ ज़्यादा बढ़ गया है तो इसका मतलब उस पर्सन ने कोई ऐसा ड्रग्स या कुछ ऐसा अल्कोहलिक एब्यूजेस के इस्तेमाल किए जिसकी वजह से उसके बॉडी में क्या बढ़ गया है, डोपामाइन का लेवल बढ़ गया है। इस वजह से इस डोपामाइन लेवल को चेक करने के प्रोसेस को बोलते हैं डोप टेस्ट। आप पढ़े होंगे या जानते भी होंगे डोप टेस्ट। बहुत सारे एटलीस्ट का डोप टेस्ट पॉजिटिव आता है, इसका मतलब उसने कोई ना कोई ऐसा केमिकल्स या कोई ना कोई ऐसा आप जो है कोई ना कोई ऐसा यूज किया हुआ है ड्रग्स जिसकी वजह से उसके बॉडी में ये डोपामाइन का लेवल बढ़ा है। वो एक्चुअल में जो नेचुरल कैपेसिटी होती है एथलीट्स की वो बढ़ा देता है। सो डोपामाइन लेवल increase the natural capacity of athletes, so the athletes often suspect in our sports gaming and they are actually cheaters if the any athletes or any sport person use the drugs that enhance the dopamine level are actually not acceptable, and that should have there should have heavy punishment for that kinds of athletes or sport person. Not only the CNS and dopamine level get affected by the coca alkaloids, it also responsible for euphoria. Euphoria means excitation. Euphoria means excitation. It also enhances the body energy, as I have told you, during the dopamine level, and this is responsible for hallucinogenic action. Hallucinogenic action means होता है false feeling. False feeling. आदमी का पैर कहीं और पड़ना है, पैर कहीं और पड़ जाता है, दिखता है सामने खंभा और दिखाई देता है पहाड़, ठीक है, जो पहाड़ दिखना वहाँ खंभा गड्ढा दिखता नहीं है, ये सब फॉल्स फीलिंग है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है आपके
कोका एल्कोलाइड्स के नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, हेडिंग के थ्रू आप इसको समझ लीजिएगा. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स देन इमीडिएटली नॉक मी इन ड्यूरिंग द लाइव क्लासेस. नाउ बैक टू द नेक्स्ट, hallucinogenic drugs. Hallucinogenic drugs, listen, drugs that causes hallucinogenic action. In previous topic, in previous coca alkaloids, I have told you the false feeling, मतलब ये बॉडी में false feeling के रिस्पॉन्सिबल है. और इससे क्या होता है, बॉडी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, कुछ ऐसे थोड़े से उसमें बॉडी में बिहेवियर चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का जो वॉलेंट्री एक्शन होता है वो सही ढंग से काम नहीं करता है. मैंने बताया कि सामने खंबा दिख रहा है तो आदमी दिखेगा, आदमी दिख रहा है तो खंबा दिखेगा, ठीक है. कभी कभी दोनों नहीं दिखते हैं और वो खंबे से लड़ जाता है. तो ये हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स है, हेलुसिनोजेनिक एक्शन काज करता है, इस वजह से उसको बोलते हैं हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स. तो आप फॉल्स फीलिंग के केस में लिख दीजिएगा द ड्रग्स दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर हेलुसिनोजेनिक एक्शन और फॉल्स फीलिंग इन आवर बॉडी. एग्जाम्पल ऑफ ड्रग्स, एट्रोपा बेलोडोना, दतूरा स्ट्रामोनियम, LSD, बार्बिट्यूरिक एसिड, बेंजोडाइजापाइन. एक्चुअल में ये दो जो दिख रहे हैं, एट्रोपा बेलोडोना और दतूरा स्ट्रामोनियम, ये प्लांट है, ठीक है. ये नेचुरल हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स है और ये केमिकल हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स है. ये नेचुरल हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स है और ये केमिकल हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स है. एट्रोपा बेलाडोना के केस में कभी कभी एग्जाम पे पूछता है, ये नेटिव प्लांट है किसका, साउथ अमेरिका का, ठीक है. अमेरिका का, साउथ अमेरिका का नहीं, ये अमेरिका का नेटिव प्लांट है, ठीक है. दतूरा स्ट्रामोनियम, ये इंडिया का. दतूरा आप जानते हैं, गॉडेस लॉर्ड शिवा को, गॉड जो है, गॉड शिवा को, गॉडेस नहीं, कोई गॉडेस वगैरह जो नहीं कहते हैं, लॉर्ड शिवा को चढ़ाया जाता है. आप देखते हो धतूरा जनरली जो है, और इसको थॉर्न एप्पल भी बोलते हैं. धतूरा को क्या बोलते हैं, थॉर्न एप्पल, ठीक है. कांटे कांटे होते हैं इसमें, इस वजह से थॉर्न एप्पल. एप्पल समझ के खाना मत इसको, ये थोड़ा सा टॉक्सिक होता है. पॉइजनस नहीं बोलेंगे, टॉक्सिक बोलेंगे. हाई डोज तो प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है, ये टॉक्सिक होता है, ठीक है. और ये हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट्स काज कर सकता है. LSD डाई, ये एग्जाम में बहुत पूछता है इसका फुल फॉर्म, लाइसर्जिक एसिड डाईएथिल एमाइड, ठीक है. लाइसर्जिक एसिड डाईएथिल एमाइड. और ये बेसिकली जो है, ये जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, LSD, बार्बिट्यूरिक एसिड और बेंजोडाइजापाइन, ये नींद की गोलियों में यूज होते हैं और बॉडी में थोड़ा सा वॉलेंट्री एक्शन को कुछ समय के लिए रोक देते हैं और इंसान जो है अपने आप को बेफिक्र समझने लगता है, ठीक है. तो ये सब जो है ड्रग एडिक्शन के डिफरेंट वेज है. बार्बिट्यूरिक एसिड और बेंजोडाइजापाइन, बार्बिट्यूरिक एसिड और बेंजोडाइजापाइन, ये डिफरेंट वेज है, डिफरेंट टाइप्स है हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स के. कीप इन माइंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अब आते हैं अल्कोहल के बारे में बता दे रहे हैं. अल्कोहल तो आप जानते ही हैं, लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. फिफ्थ, अल्कोहल, ठीक है. मोड ऑफ इंटेक जो है इसका क्या होता है, ड्रिंकिंग के थ्रू किया जाता है और ये इसका जो मेन प्रॉब्लम होता है और ये जो मेन सिम्टम्स अपीयर्स होते हैं बॉडी में, वो भी हेलुसिनोजेनिक एक्शन के ही थ्रू होते हैं. फॉल्स फीलिंग होती है, ठीक है. स्वीटिंग होती है, आप लिख सकते हैं इसमें, स्वीटिंग होती है, ठीक है. और हेलुसिनोजेनिक एक्शंस होते हैं, रिड्यूस द वॉलेंट्री एक्शन, ये सब सारी चीज़ें. जो बॉडी इफेक्ट होता है इसमें क्या होता है, लीवर, किडनी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये तीनों चीज़ें इसमें इफेक्ट होती है, ठीक है. अल्कोहल में, अल्कोहल के यूज में लीवर, किडनी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ज़्यादा यूज होता है. तो आई होप इसको लिख लेंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी. अब आते हैं नेक्स्ट, विथड्रॉल सिंड्रोम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको बता दे रहे हैं.